Hello students, so now we are going to talk about effects of electric current. Yes guys, this is also one of the very important topics of board examination. So let us quickly see what all this chapter has for us. Okay, now when we're talking about effects of electric current, we need to understand that effects of electric current has three parts. One is called heating effect, one is called as magnetic effect, and one is called as chemical effect. However, in physics, we are not going to deal with chemical effect. So what does this chapter has for you? This topic has for you topics like energy transfer, then the heating effect, and then finally the magnetic effect and its applications. So guys, without any further delay, let us continue with the topic of effects of electric current. So well, when we talk about effects of electric current, that means first of all we need to understand that the effect is of electric current. Now electric current means the flow of charge. Okay, the flow of charge is meant by the term electric current. So electric terms comes from electron and current comes from the flow. So now if I tell you a simple circuit, let us consider a simple circuit. Here we have the resistor R, which has two terminals A and B. Now the current is flowing in the simple circuit, which has a battery. The current I is flowing through it. There is a key, there is a plug key, and then there is a voltmeter to measure the potential difference across the two terminals AB. There is ammeter, which is used to measure the electric current. So now this is how the energy is being transferred from one point to another point, and how the energy is being transferred from positive terminal to the negative terminal. But guys, what is this heating effect of current? Or what is this magnetic effect of current? To understand that, let us go one by one. First, we talk about heating effect. Heating effect is more for your numerical purpose, and magnetic effect is more for your theoretical purpose of this particular topic. Okay, so we will be discussing first heating effect, and then we will move to magnetic effect. Now, what is this heating effect according to the textbook? Well, heating of electric current is that when a resistor is connected in an electrical circuit, like here, okay, the heat is produced in it due to current. Now this is known as the heating effect of current, and a lot of appliances in our day-to-day life like water boiler, electric cooker, electric bulb make use of the heating effect of electric current. Now very important here, electric bulb book से जरूर पढ़ के जाना guys, ठीक है, कि how, okay, because that is not going to be discussed in this particular session. It's a quick recap, and very important crisp things are what we are looking in this particular session. ओके, सो हीटिंग इफेक्ट तो ये होता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है, मेन बात यहां पर आके अटकती है. देखो गाइज, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब मैंने क्या बोला, फ्लो ऑफ चार्ज. सो जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड इन अ गिवन रेजिस्टर, okay, at that time they collide with themselves, and during this collision there is a loss of kinetic energy, and this loss of kinetic energy results into heat energy. So energy cannot be destroyed, so basically this loss of kinetic energy, so kinetic energy here gets converted into heat energy, and this is what is we are calling as heating effect of electric current. Now to understand the heating effect, the numerical aspect of it, let us understand few important things. We know that power is work upon time. Likewise, electrical power P is electrical energy per unit time. Now electrical energy, electrical work done, remember we have already studied this in 9th standard. It is QV, work is equal to QV, so energy is also equal to QV. Now you can also write as VQ here. Now VAB means we are talking about that resistor in the previous circuit, so VAB is nothing but the potential difference, okay, across the two terminals AB. Q is the flow, the charge which is going in from one point to another in time t seconds. Okay, so here Q by T is nothing but electric current. I is equal to Q by T. So what is the final formula for power? It is V into I. Vi is the formula of electrical power. So the source of energy here, the cell, gives in time t the energy P into T to the resistor. Okay, now if I is the current flowing continuously through the circuit, the heat is produced in the resistor in time t seconds will be given as energy. Energy is power into time. And what is the formula for power? Vi, and time is t seconds. So heat का जो एक फॉर्मूला बन गया वो हो गया VIT. ये पहला फॉर्मूला होता है हीट का. क्या है हीट का फॉर्मूला? VIT. ओके, अब यहां पर हम थोड़ा सा ओम्स लॉ लगा देते हैं. ओम्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस स्टैंडर्ड में. ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर. V इज इक्वल टू आई आर. अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूं, V इज इक्वल टू आई आर को कहां पे भाई, इसी हीट के फॉर्मूले में, VIT के फॉर्मूले में. तो अगर VIT के फॉर्मूले में मैंने मान लो I का वैल्यू पुट कर दिया V बाय आर, तो ऑलरेडी एक V है, और I की जगह पे क्या आ गया, V बाय आर. तो ये क्या हो गया, V स्क्वायर T बाय आर. ये एक दूसरा फॉर्मूला हो गया. लेकिन अगर मैं इसी ओम्स लॉ को V इज इक्वल टू आई आर पुट करता हूं V की जगह पर, तो I ऑलरेडी है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, I स्क्वायर आर टी. तो गाइज ये तीसरा फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वेर इन द हीट जनरेटेड, okay, in a resistor due to the current flowing through it for time t seconds is given as H is equal to I square RT. So Joule's law states that the heat produced is directly proportional to the square of the current flowing through it.
It is the resistance of the conductor and the time for which the current flows through a conductor. This is called as Joule's law. तो यहां पर हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से आ गए? P is equal to VI, P is equal to VI. पावर का एक और फॉर्मूला बन गया, कौन सा? दूसरा. ये तो VI हो गया. दूसरा कौन सा फॉर्मूला होगा? दूसरा फॉर्मूला होगा पावर का V स्क्वायर बाय R. और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? I स्क्वायर R. और इसी तरह से हीट के भी तीन फॉर्मूले हो जाएंगे. पहला फॉर्मूला क्या होगा? VIT. दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वायर T बाय R. और तीसरा फॉर्मूला क्या होगा? जूल्स लॉ का, विच इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. तो ये 6 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इस टॉपिक में यहीं पर. बाकी जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला QE, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज Q बाई T इज I, ये सारी बातें तो हमको याद वैसे भी रखनी ही है गाइस. आर यू गेटिंग इट? Now, if we talk about the unit of electrical power, the unit of electrical power is what? P is equal to VI. That means volt into ampere. Now, what is 1 volt? 1 volt is nothing but 1 joule, okay, upon 1 coulomb. And what is 1 ampere? It is 1 coulomb upon 1 second. ये सब हमने 9th में पढ़ा हुआ है गाइस. तो अगर यहाँ पर हम इन यूनिट्स को कैंसिल आउट करें तो हमें पता लगता है कि फाइनली पावर का वैल्यू क्या आएगा? इज 1 जूल पर सेकेंड. और वही क्या होता है? वॉट. और ये बात हमने पहले भी देखी है, वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक में भी पढ़ा हुआ है. पावर का यूनिट क्या होता है बेटा? वॉट. ठीक है. अब अगर पावर का यूनिट वॉट है, ठीक है, तो एनर्जी क्या है? जूल. तो वो क्या होगा? वॉट सेकेंड. ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए. सो दस द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज 1 वॉट. बट प्लीज रिमेंबर दिस, दैट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर 1 वॉट इज वेरी वेरी स्मॉल. Okay, so for bigger units we use 1000 watt, which is nothing but 1 kilowatt. Nothing different. 1 kilogram is 1000 grams. वैसे ही 1 kilowatt is 1000 watts. This is used as a unit to measure the electrical power in practice. Now understand, if 1 kilowatt of power is used for 1 hour, now this becomes a commercial unit, जिसके बेसिस पे हमारा बिल कैलकुलेट होता है. ठीक है, तो कमर्शियल यूनिट हो जाती है 1 किलोवाट आवर. दैट इज 1 किलोवाट इनटू 1 आवर. तो उसमें कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितनी एनर्जी हम यूज करेंगे उतने का हमको पेमेंट करना पड़ेगा. तो 1 यूनिट बोलते हैं, और पर यूनिट का चार्ज अगर हमें पता हो तो हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. जो बेसिक बिल होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? 1 किलोवाट आवर का मतलब है कि 1 किलोवाट ऑफ दिस पावर फॉर 1 आवर. तो 1 किलोवाट हो गया 1000 वॉट्स, और 1 आवर कितना हो गया? 3600 सेकेंड्स. अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर लें स्टूडेंट्स तो कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड. और वॉट सेकेंड मैंने पहले भी बताया क्या होता है? नथिंग बट एनर्जी विच इज इन जूल्स. तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, मतलब 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कितनी होती है? 1 यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, कमर्शियल पर्पसेस की मैं बात कर रहा हूं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करके जाना. ठीक है, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना. 1 कमर्शियल यूनिट, 1 यूनिट बोलते हैं इसको. 1 यूनिट का वैल्यू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स. इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है. ठीक है, ओके, मूविंग अहेड. हीट की वजह से ना कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए. मतलब ये शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. बेसिकली शॉर्ट सर्किट क्या होता है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं गाइस. तो देखो, इट इज वेरी वेरी सिंपल. मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, जो नॉर्मल हमारे घर में वायरिंग होती है, 3 पिन और 2 पिन होती है, मिनिमम 2 पिन होती है. ठीक है, 3 पिन में एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, और तीसरी होती है अर्थिंग. अब लाइव वायर का काम होता है करंट को लेके आना, न्यूट्रल वायर का काम होता है करंट को लेके जाना, और अर्थिंग का काम ये होता है कि भाई अगर बाय चांस कुछ अप्लायंस में कोई वेयर टेयर आ गया है, उसकी उम्र हो गई है, पुराना हो गया, और अगर कुछ करंट उसने होल्ड कर लिया है तो फिर उसको वो अर्थ में भेज देता है. ठीक है, इसीलिए जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3 पिन ही यूज होता है, ताकि हमें करंट ना लगे बाय चांस कुछ अगर करंट रह गया है तो भी. ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है? तो देखो, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है 220 वोल्ट्स. ठीक है, अब नॉर्मल पाथ क्या है? नॉर्मल जो सर्किट है वो कैसा है? लाइव से करंट आया, उस अप्लायंस के अंदर गया, जितना उस अप्लायंस को यूज करना है उसने यूज किया, और बाकी न्यूट्रल के थ्रू वापस भेज दिया. लेकिन अगर किसी वजह से, हमारी वेयर एंड टेयर की वजह से, इंसुलेशन ऑफ द वायर इज नॉट प्रॉपर, और फॉर सम XYZ रीजन, ठीक है, अगर वो जो उसका इंसुलेटेड कोटिंग है वो टूट गया है, खराब हो गया है, और गलती से अगर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर कॉन्टैक्ट में आ गया, तो भाई अब तो करंट डायरेक्टली फ्लो हो रहा है, उसको रेजिस्टर से जाने की जरूरत ही नहीं है. बस इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? शॉर्ट सर्किट. सो व्हेन द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्यू टू व्हिच द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, okay, and produces the excessive heat, is what is called as short circuit. And because of this excessive heat, if there is any flammable, anything inflammable, ठीक है, like wood, cloth, plastic, anything, if it is there, it can catch fire. तो अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? इसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं फ्यूज वायर. फ्यूज बहुत तरह के होते हैं. ठीक है, तो फ्यूज वायर क्या है भाई? इट इज अ प्रिकॉशनरी मेजर.
ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली इसको एक पर्टिकुलर एलॉय से बनाया जाता है जिसमें एक परमिसिबल अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो होगा और उससे कितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसके हिसाब से इस एलॉय को हम बना लेते हैं कि भाई उससे ज्यादा हीट अगर फ्लो होगा तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाए, मेल्ट हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उससे जो है वो करंट वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो बस इसी तरह से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा एक और चीज जो पूछा जा सकता है वो है ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्यों होता है, कैसे होता है और उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो देखो ओवरलोडिंग कब होता है, जैसे मान लो गर्मी का सीजन है, अब एक ही रूम में बहुत सारे अप्लायंस चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, मोबाइल भी चार्ज हो रहे हैं, दो दो मोबाइल हैं चार्ज हो रहे हैं, और मतलब हर तरह का एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चल रहा है, या पूरे घर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर अचानक से कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगती है उस पर्टिकुलर सर्किट में। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ इफ दिस कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट, व्हाट विल हैपन? The current is flowing, so excessive amount of heat will be generated. Now if the excessive amount of heat will be generated, again it can cause fire. So again, how to prevent it? Same, we will use a fuse wire. Now fuse wire will, what will happen? It will melt, and if it will melt, the supply gets shut down. So यहाँ पर ओवरलोडिंग जो है उसमें बहुत सारे अप्लायंसेस एक रूम में या एक घर में यूज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से ज्यादा करंट फ्लो होने लगती है, उसकी वजह से आग लगने का खतरा होता है, जिसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूज वायर को यूज कर रहे हैं। तो शॉर्ट सर्किट समझ में आया, ओवरलोडिंग समझ में आया, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है गाइस। फ्यूज वायर जो है वो अलग अलग फ्यूज में होते हैं जो इस तरह से दिखते हैं। आजकल हम एमसीबी यूज करते हैं, मतलब अगर तो अपने घर का भी मेन सर्किट देखोगे तो हर रूम के लिए एक एमसीबी लगा होगा। एमसीबी यहाँ पे क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। सो बेसिकली दिस मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि हर रूम के लिए कनेक्टेड है। अगर किसी रूम में स्पेसिफिक ज्यादा करंट जारी तो वहां पर ये ड्रिप हो जाता है, ठीक है, और सर्किट को ब्रेक कर देता है। एक तरीके की वार्निंग है कि भाई ज्यादा करंट फ्लो हो रही है, सारे अप्लायंसेस को बंद कर देना चाहिए और फिर इसे हम वापस से ऑन कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जो नेसेसरी अप्लायंस है हम उन्हीं को चालू करते हैं। तो बेसिकली दिस इज अगेन लाइक अ प्रिकॉशनरी मेथड, ओके, टू अवॉइड ओवरलोडिंग, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर room or in a particular house, and to prevent the house from any mishap like catching fire due to overloading. Okay guys, so this was a heating effect. Now we come to the magnetic effect of current. heating effect में बल्ब वगैरह पढ़ लेना, वो मैंने अभी इसमें कवर नहीं किया है, it's just a short note, वो अलग से पढ़ लेना, और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना, उसको मैं अलग से elaborated वे में बता दूंगा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है? अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थियोरेटिकल पार्ट है। तो बेसिकली हैंस ऑस्टर्ट करके एक साइंटिस्ट हुए, ठीक है, उन्होंने अचानक से एक चीज देखी, उन्होंने ये ऐसा ऑब्जर्व किया कि अगर एक वायर जिसमें करंट पास हो रहा है वो एक कंपास नीडल के पास है तो वो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब कंपास नीडल जो है, जो मैग्नेटिक नीडल है, वो किस तरह से डिफ्लेक्ट करती है? सेम जैसे मैग्नेट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब मैग्नेट के बारे में हमें पता है, नाम क्यों दिया गया मैग्नेट वगैरह वगैरह, ये सब जनरल बातें हैं, आज के इस सेशन में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि दो पोल्स होते हैं। मैग्नेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डाइपोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ और साउथ रिपेल करता है, नॉर्थ और साउथ जो है वो अट्रैक्ट करता है। तो इसी तरह का डिफ्लेक्शन देखा हैंस ऑस्टर्ड ने एक लैब में बैठे बैठे, अचानक से देखा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक वायर जिसमें से करंट फ्लो हो रही है, अगर वो एक मैग्नेटिक नीडल के पास हम लेके जाएं तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करती है, और अगर उस करंट का डायरेक्शन चेंज किया जाए तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होता है। मतलब कभी कभी नॉर्थ अट्रैक्ट होता है तो कभी कभी साउथ अट्रैक्ट होता है। मतलब वो जो वायर है वो कभी कभी साउथ फील्ड क्रिएट करती है, कभी कभी नॉर्थ की तरफ फील्ड क्रिएट करती है। और यहां पर उन्होंने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, और उस मैग्नेटिक फील्ड की, जो करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो मोर द करंट, मोर विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट। लेस करंट विल प्रोड्यूस लेसर और द वीकर मैग्नेटिक फील्ड, एंड इफ देयर इज नो करंट देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज इट इज द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था हैंस क्रिस्टियन ऑस्टर्ड ने। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरह से उन्होंने फाइंड आउट भी किया। अब बात तो ये हो गई कि चलो ठीक है, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो ये हमारे लिए हो गया यूजफुल, क्योंकि अब हम इस करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, जो परमानेंट मैग्नेट के लिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते। परमानेंट मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट है, ठीक है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक बटरफ्लाई की तरह दिखता है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है, जो हमने देखा हुआ है। तो उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है वो समझ लिया जाए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की कैसी होती है? इन द सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होती है, सर्कुलर फील्ड होती है, ठीक है। अब इसे अगर फाइंड करना है तो कैसे करें, या होती भी है या नहीं होती तो कैसे देखा जाए? तो कार्डबोर्ड ले लो, कार्डबोर्ड में एक होल कर दो, उसमें आयरन फाइलिंग्स को स्प्रेड कर दो, एक वायर उसमें से पास करो, वायर में से करंट अगर हम पास कराएंगे तो आयरन फाइलिंग्स विल अरेंज देमसेल्फ इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। इसका मतलब उस सर्कुलर फील्ड जो है वो कौन सी है? मैग्नेटिक फील्ड है। अब किस तरह से इस मैग्नेटिक फील्ड को
समझा जाए तो उसके लिए एक रूल दिया गया जिसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल सेज दैट इफ यू इमेजिन अ राइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इफ यू इमेजिन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड विद योर थंब आउटस्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट योर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो ऐसे, करंट नीचे जा रहा है तो ऐसे, ठीक है. सो इट इज in the direction, the thumb is in the direction of the current flowing. In that case, the curled fingers around the conductor gives us the direction of the magnetic field. अब वो या तो clockwise होंगी या तो फिर anti-clockwise होंगी. So imagine that you have held the conductor in your right hand in such a way that the thumb points in the direction of current. Then turn your fingers around the conductor. The direction of the fingers in the direction of the magnetic lines of force. ठीक है, तो this is what is right hand thumb rule. Very very easy and very very important guys. ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम एक सर्कुलर लूप ऑफ वायर ले लें तो उसमें हमें इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड दिखती है. ठीक है, और अगर एक सोलेनॉइड ले लें, ठीक है, सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजेंबल करती है एक बार मैग्नेट से. जैसे मैंने बताया, क्विक रिकैप, फटाफट जा रहा हूं, सोलेनॉइड क्या है, क्यों है, बेसिक्स में हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सोलेनॉइड है, ठीक है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अब ये रिजेंबल कर रही है बार मैग्नेट से. तो इसको हमने नाम दे दिया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट. मतलब मैग्नेट तो है बट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये हमारे काम की चीज है. इसके मैग्नेटिक फील्ड को हम कम, ज्यादा, बंद, चालू जो चाहे वो कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस शोज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट पासिंग थ्रू अ सोलेनॉइड कॉइल. ओके, now there is a concept which is called as force acting on a current carrying conductor. So well, if there is a current carrying conductor placed in the vicinity of a magnet, it will experience force. Okay, अब इसको एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया गया. इसके लिए हमने क्या किया, एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया और ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है इसको हमने एक स्टैंड में फिक्स किया और एक दूसरा स्टैंड लिया जिसमें हमने एक वायर डाला. अब ये कॉपर का वायर है, मैग्नेट से इंटरेक्ट नहीं करता है, थोड़ा सा लूज रखा उसको. अब उसमें से जैसे ही करंट पास कराया तो वो जो वायर है वो आगे पीछे मूव करता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. वो एक्चुअली या तो अंदर की तरफ या तो फिर बाहर की तरफ इस तरह से उसको पुश मिलता है. जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, स्कीमेटिक डायग्राम में दिखाया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब ये जो कॉपर वायर है वो नॉर्मली तो इंटरेक्ट नहीं करता बट जब उसमें से करंट पास होती है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है. वो मैग्नेटिक फील्ड हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है. अब किस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, क्योंकि अगर वायर मूव हो रही है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं होता है, ये हमको सर आइजैक न्यूटन ने बताया हुआ है. तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फोर्स बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, अगर हमें ये फाइंड करना है तो इसके लिए उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पर एक बंदा था फ्लेमिंग. उसने बोला भाई मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है, यूज करो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक है, तो उसने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, दैट इमेजिन that you are arranging the fingers of your left hand, the thumb, the forefinger and the middle finger in such a way that they are mutually perpendicular to each other. Left hand, ठीक है, that they are mutually perpendicular to each other. Then if the forefinger is representing the direction of the magnetic field, क्योंकि सबसे पहले horseshoe magnet था, so if it is representing the magnetic field and then you pass the current, so your middle finger is in the direction of the electric current, then the thumb represents the force acting on a current carrying conductor. तो ये हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गाइस. तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, सो देयर इज अ फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. उसकी मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, उसके मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, ये सब हैंस ऑस्टर्ट ने हमको बताया. अब हैंस ऑस्टर्ट ने जब ये सारी बातें हमको बताई तो एक और बहुत मशहूर साइंटिस्ट रहे जिनका नाम है माइकल फैराडे. तो माइकल फैराडे ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए और उन्होंने ये बोला कि भाई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो इंड्यूस करंट इन द कॉइल. उल्टी बात की इन्होंने और इसके बेसिस पर उन्होंने प्रूव भी किया और एक अपना लॉ भी दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन. इट सेज दैट इफ द कॉइल इज मूव्ड इन द वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड द करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. और गैल्वेनोमीटर में दिखता है कि भाई करंट जो है वो इंड्यूस की जा रही है, वो आ जाती है उस कॉइल में बिना किसी सोर्स के. बट शर्त यह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरिंग होनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए. सो देयर इज अ चेंज इन मैग्नेट, मतलब मूविंग मैग्नेटिक फील्ड है, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम. तो एक बार जब कम से ज्यादा कर रहे हैं तो अलग तरह की करंट इंड्यूस हो रही है, ज्यादा से कम हो रहा है तो फिर अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है. ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है. सो either you are increasing the magnetic field so current is in one direction, either you are decreasing the magnetic field so that the current is in different direction. So this is called as Faraday's law of induction. अब किस डायरेक्शन में करंट, जो इंड्यूस करंट है वो लग रही है, इसको बताने के लिए फिर से फ्लेमिंग ने अपना राइट हैंड रूल दिया जो लेफ्ट हैंड रूल की तरह ही है. उसने बोला अरेंज द फोर फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ योर राइट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ द फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है. ठीक है, एंड द थंब रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर. इसमें थंब पहले आ गया.
ठीक है, बिकॉज जब तक मूव नहीं कराएंगे कंडक्टर तब तक इंड्यूस करंट होगा नहीं. सो इफ द फोर फिंगर is in the direction of the magnetic field and thumb represents the motion of the conductor, then the middle finger represents the direction of the induced current. तो इस तरह से लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. और इन दोनों रूल्स को यूज करके और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, उसके ऊपर हम आ जाते हैं. ठीक है, वो है भाई इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रिकल जनरेटर. मोटर और जनरेटर ये दो इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, तो पहले हम मोटर पढ़ते हैं फिर जनरेटर पढ़ते हैं. अब जब हम करंट को इंड्यूस कर रहे हैं तो ये बात जानना जरूरी है कि भाई दो तरह की करंट होती है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट क्या होती है? जो बैटरी से बनती है. ऑल्टरनेटिंग करंट जो हमारे घर में पावर सप्लाई आती है. ठीक है, अगेन डेप्थ में बुक में लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर बातें नहीं करूंगा. हाँ, अगर इंपॉर्टेंट पूछो तो डिस्टिंग्विश आता है व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी. उसका जो डिस्टिंग्विश है वो लर्न करके जो आने के चांसेस ज्यादा है. और छोटे मोटे क्वेश्चन आ गए तो अगर डिस्टिंग्विश याद है तो आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द अदर रिलेटेड क्वेरीज रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट. ठीक है, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक मोटर की पहले बात करते हैं. ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये हम बैटरी से चला रहे हैं तो इसको डीसी मोटर भी कहा जाता है. एसी मोटर भी होती है जो हम घरों में यूज करते हैं पानी को अपनी टंकी में ऊपर चढ़ाने के लिए, वो हम यहां पे बात नहीं कर रहे हैं. हम यहां पे बात कर रहे हैं एक सिंपल डीसी मोटर की. तो अब इसका जो सबसे पहले प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, डायग्राम ये सब आता है. ठीक है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं. तो सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक मोटर का? एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रिंसिपल है इसका. अब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है? वी कंसिडर टू पोल्स हियर, नॉर्थ एंड साउथ. इट्स बेसिकली हॉर्सशू मैग्नेट. ओके, तो पीछे का पार्ट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है. पर वायर का लूप रख देते हैं, नाम दे देते हैं कॉपर के लूप को ABCD. तो AB एक आर्म हो जाता है, CD दूसरा आर्म हो जाता है. ये दोनों आर्म जो है वो कनेक्ट होते हैं स्प्लिट रिंग से. बेसिकली एक मेटालिक रिंग को बीच से तोड़ दो तो ये स्प्लिट रिंग्स बन जाती हैं. इनको नाम दे दिया गया XY. और फिर इन रिंग्स में हम कनेक्ट करते हैं कार्बन ब्रशेस E और F. और इन कार्बन ब्रशेस के साथ हम आगे सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं बैटरी और की के साथ. अब वायर अगर स्प्लिट रिंग में होगा तो रिंग घूमेगी तो वायर उसमें उलझ जाएगा, इसलिए हम कार्बन ब्रशेस बीच में लगा देते हैं. तो ब्रशेस के बीच में वो रिंग्स घूमती रहती है एंड वायर इज इंटैक्ट विद द ब्रशेस. ठीक है, अब ये हमारा मेन कंस्ट्रक्शन हो गया इलेक्ट्रिक. तो हमें प्रिंसिपल समझ में आ गया, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया. अब वर्किंग क्या है? जैसे ही हम करंट को इसमें ऑन करते हैं तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट मींस अगर यहां पे हम इस डायग्राम को देखें सो E इज द पॉजिटिव साइड, राइट. तो मतलब A से B करंट जाएगी और C से D आएगी, फिर F से निकल के वापस से ये पूरा जो है सर्किट कंप्लीट हो गया. अब यहां पर हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करो तो देखो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है. A से B तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. समझ में आ रहा है? तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? तो AB के ऊपर नीचे की तरफ का फोर्स आ गया. तीनों डायरेक्शन उनको दिख रहे हैं स्क्रीन पे. नॉर्थ से साउथ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड था, A से B तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड था. उंगलियों को अरेंज करके देखो. ठीक है, तो फोर्स कैसा लगेगा AB के ऊपर नीचे की तरफ का. गाइस आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है. ठीक है, अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से मार्क्स ले आओ. ठीक है, और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दो, थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट कर दो, मुझे भी सपोर्ट कर दो. मतलब इस समय रात का 2 बज रहा है, 2:30 बज रहा है इनफैक्ट. ठीक है, सो ओके, सो A से B तुम्हारा करंट जा रहा था. ठीक है, और नॉर्थ से साउथ तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है गाइस. ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया फोर्स नीचे की डायरेक्शन में. इसी तरह CD के ऊपर देखेंगे तो ऊपर की तरफ का फोर्स लगेगा. तो ये जो कॉइल है तुम्हारी, है ना, लूप ऑफ कॉपर वायर, ये अब रोटेट होना शुरू हो जाएगी. तो 180 डिग्री जब रोटेट हो जाएगी तब जहां AB था वहां CD आ जाएगा, जहां पे CD है वहां पे AB आ जाएगा. मतलब अब CD के ऊपर नीचे का फोर्स लगेगा, AB के ऊपर ऊपर का फोर्स लगेगा, और फिर से वो 180 डिग्री मूव हो जाएगी. CD अपनी जगह, AB अपनी जगह, और इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी जब तक करंट इसमें से पास हो रहा है. तो बेसिकली दिस इज हाउ एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स. ठीक है, सो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. आई होप तुम्हें समझ में आ गया है एक्सप्लेनेशन. अब इसी को लर्न कर लो बुक से देखकर, और ना समझ में आए तो कुछ और भी पूछना हो तो डेफिनेटली DM करके पूछ सकते हो. तो ये तुम्हारी हो गई डीसी मोटर. अब हम आ जाते हैं जनरेटर के ऊपर. अब यहां पर जनरेटर देखो कौन सा है. 2 करंट है, दोनों करंट के जनरेटर को हम डिस्कस करेंगे. डीसी जनरेटर पहले करेंगे. हमारी बुक में पहले AC जनरेटर दिया, लास्ट में डीसी जनरेटर के बारे में बात की है, लेकिन हम पहले डीसी जनरेटर करते हैं. क्यों? क्योंकि डीसी जनरेटर जो है वो डीसी मोटर की तरह ही, खाली फर्क क्या है उसके प्रिंसिपल में. डीसी जनरेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट जनरेट्स अ डायरेक्ट करंट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डीसी जनरेटर. सिंपल सी बात है. तो यहां पे उल्टा हो रहा है. मोटर क्या कर रहा था? इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा था. जनरेटर क्या करेगा? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगा. और टाइप ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई हम कौन से वाले जनरेटर की बात कर रहे हैं. तो वापस से देखो इसका जो सेटअप है वो एकदम सिमिलर है. ठीक है, खाली फर्क क्या है? यहाँ पे हमने रिंग्स को नाम जो है वो अलग दे दिया. R1 R2 AB इज कनेक्टेड टू R1 एंड देन
CD is connected to R2 and the carbon brushes are named as, instead of XY, we are giving it as B1, B2. So R1 is connected to B1 for now, R2 is connected to B2, and then instead of the circuit getting complete, we have connected it with the bulb. भाई अगर करंट जनरेट हुई तो करंट से बल्ब जल जाएगा, है ना, बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एक एक्सल डाल दी जाती है। अब इसको हम रोटेट करते हैं, मान लो इस तरह से क्लॉकवाइज में रोटेट किया तो ए बी ऊपर जाएगा, सी डी नीचे आएगा। तो यहां पर हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। अब राइट हैंड रूल यूज करने के लिए हमारे पास मोशन ऑफ द कंडक्टर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड तो हमको पता ही है, नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। तो देखो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया कि ए बी ऊपर जाएगा, सी डी नीचे, और ए बी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ लग रहा है। तो अगर यहां पर हम डायरेक्शन यूज करें तो करंट जनरेट होती है ए से बी, ए से बी और सी से डी, डी से होते हुए जो सर्किट में करंट है वो कैसे जाएगी, B2 से B1, और देखो करंट जनरेट हुई तो बल्ब जल गया। मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द रोटेशन में जो करंट फ्लो हो रही है वो B2 से B1 में हो रही है। अब आधा रोटेशन खत्म हो गया, AB की जगह कौन आ गया, CD, और CD की जगह कौन चला गया, AB। अब ध्यान से देखो, अब करंट कैसे जा रही है, D से C और B से A। तो क्योंकि डायरेक्शंस तो वही है ना, तो करंट अब कैसे जाएगी, D से C और B से A। तो ध्यान रखो कि लूप में करंट रिवर्स हो गई, पहले ए से बी जा रही थी, सी से डी, अब डी से सी और बी से ए। ये जो करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ ये लूप है, हमें लूप से मतलब नहीं है। हम सर्किट में देखेंगे तो सर्किट में अभी भी करंट कैसे जा रही है भाई, ए बी इज कनेक्टेड टू R1 एंड R1 इज नाउ कनेक्टेड टू B2। यही बस कैच है कि फर्स्ट हाफ में R1 was connected to B1, R2 was connected to B2. In the second half of the rotation, R2 and R1 swap the brushes. R2 is with B1 and R1 is with B2. So current in the circuit still flows, the bulb glows, and in the second half of the rotation also the current is flowing from B2 to B1. So this is a direct current because the direction of the current is not changing, my dear students. Okay? So this is called as a direct current. Okay, I hope DC generator is clear to you. Now if we come to AC generator, the principle is same, only the thing is that it generates the alternating current. Now how? तो इसका सेटअप जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें जो आर्म है ए बी वो शॉर्ट है, एक सी डी जो है वो लॉन्ग आर्म है। अब यहां पर हम स्लिप रिंग्स यूज कर सकते हैं, कंडक्टिंग रिंग्स भी बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स नहीं है। तो ए बी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू R1 एंड सी डी इज ऑलवेज कनेक्टेड टू R2, and then we have the carbon brushes B1 and B2. So here the rings will not interchange their brushes, the directions will change, but because the brushes are not being changed, so the change in direction of the current in the loop will also lead to the change of direction in the circuit. In the previous one, because the rings were swapping the brushes, the direction in the circuit was not changed, but the direction in the loop was still changed. So let us have a look here. Now we have a galvanometer, because the alternating current, we have to confirm whether the direction of the current is changing or not. So here there's an axle, we rotate it clockwise. Okay, the force on the AB is upward, on CD is downward, the magnetic field on AB is north to south, and the current is going from A to B, and then from C to D, and the current is flowing from B2 to B1 in the first half of the rotation. In the second half, the AB and CD swap their places, but now you see still, you know, AB is connected to R1 and R1 is connected to B1, and CD is connected to R2 and R2 is connected to B2. So again, now CD goes up, AB goes down, the magnetic field on CD is north to south, so the current in the loop is reversed, D to C, B to A, and because B to A, that arm is connected to R1 and R1 is connected to B1, so now the current flows from B1 to B2. So in the second half of the rotation, the current will flow from B1 to B2. So this is what is alternating current. In the first half, it is B2 to B1. In the second half, it is B1 to B2. I hope you see the galvanometer also fluctuates accordingly, and this is how an AC generator generates the alternating current. Is that clear, guys? So this is very, very important part, the electrical motor, DC generator and AC generator. I hope the entire topic is clear to you. Thank you for listening out to me, and all the very best for your exams. This is Aman signing off. If you like the video, do share with friends, subscribe the channel as much as possible, get your friends on the same channel. Take care, guys. Bye bye.